Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss a new chapter of Criminal Procedure Code that is deal with trial before court of session. So what will be the procedure of trial before court of session? What will be the stages of trial? We will discuss under this particular lecture. So section 225 to section 237 we will discuss in this particular lecture. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन. सारे सेक्शन 225 से लेकर सेक्शन 237 तक हम डिस्कस करने वाले हैं. पूरा प्रोसीजर सेशन ट्रायल किस तरीके से चलता है आज हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे इन पर पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करने की और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस चैप्टर पर पूछ सकता है वो भी हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Trial before court of session. So criminal trial is meant for doing justice not only to the victims but also to the accused. Object to ensure a fair trial, fair to accused and prosecution. So the very purpose of criminal trial is to do justice with the victims as well as with the accused. And the very object to ensure a fair trial, the fair trial to the accused as well as to the prosecution. तो क्रिमिनल ट्रायल का एम ही ये है कि जस्टिस करे, वो चाहे विक्टिम के साथ हो या अक्यूज्ड के साथ, और फेयर ट्रायल प्रोवाइड करे अक्यूज्ड को या और प्रोसिक्यूशन को. द ऑब्जेक्ट शैल बी नो innocent man is punished, also see that a guilty man does not escape. So the another object of criminal trial is to see that no innocent man is punished and also see that a guilty man does not escape. तो और एक ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल ट्रायल का कि इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं होनी चाहिए और कोई गिल्टी पर्सन जो क्रिमिनल है वो छूटना नहीं चाहिए. ये सब चीजें ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल ट्रायल का. सो trial before court of session start from section 225. Trial to be conducted by public prosecutor. So always on behalf of a state, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यूज टू कंडक्ट अ केस. तो स्टेट के तरफ से, सरकार के तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील केस को कंडक्ट करता है, केस को लड़ता है. सो इन एवरी ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट एज अ डिफेंस एवरी पर्सन हैज अ राइट टू बी डिफेंडेड बाय काउंसिल ऑफ हिज चॉइस, एंगेज अ लॉयर. सो ट्रायल इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, बट at the same time the accused is having a right to defend himself by the advocate of his choice. तो अक्यूज्ड क्या कर सकता है, अपने चॉइस का कोई एडवोकेट लगा सकता है अपने डिफेंस के लिए. वेदर द कमिटेड मैजिस्ट्रेट हैज कंप्लाइड सेक्शन 207 एंड 208. तो मैजिस्ट्रेट ट्रायल शुरू होते वक्त सबसे पहले ये देखेगा कि चार्जशीट की कॉपी अक्यूज्ड को मिली है या नहीं मिली है, ये सब चीजें. सेक्शन 225 ये कहता है कि सरकार की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस लड़ेगा. सेक्शन 226 डील्स विद ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन. सो when accused appear or is brought before the court in pursuance of a commitment of the case under section 209. So whenever any case is triable by a session court, lower court used to commit the case to session court, and after such a committal proceeding, and if the accused is brought before the magistrate or if the accused appear himself before the magistrate in pursuance of that particular committal प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 209. तो जब कभी भी लोअर कोर्ट से जब केस ट्रांसफर होती है सेशन कोर्ट में और अक्यूज्ड अगर अपीयर होता है सेशन कोर्ट के पास या वो लाया जाता है कोर्ट के पास, तो सिचुएशन में क्या होगा, द प्रोसिक्यूशन शैल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द एक्यूजेशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड स्टेटिंग ब्रीफली बाय व्हाट एविडेंस ही proposes to prove the guilt of accused person. So when the accused appears before the court of law, the prosecution used to open his case by describing the charges leveled against the accused person, as well as he used to mention the witnesses and the list of evidences on the basis of which he
wants to prove the guilt of accused person. तो प्रोसिक्यूशन क्या करता है, अक्यूज्ड के सामने अक्यूज्ड पे जो चार्जेस लगे हुए हैं वो चार्जेस डिस्क्राइब करता है कि अक्यूज्ड पे ऐसे ऐसे चार्जेस लगे वाले हैं, और प्रोसिक्यूशन ये भी कहता है कि मेरे पास ये विटनेस है, ये एविडेंस है जिसके चलते मैं अक्यूज्ड की गिल्ट प्रूव करने वाला हूं. दैट इज ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन. Section 227 deals with the discharge of accused. So, after considering the record of case and document submitted therewith, तो कोर्ट क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट जो भी रिकॉर्ड कोर्ट के पास सबमिट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल चार्जशीट सबमिट किया हुआ है, उसको कंसिडर करने के बाद आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ पार्टीज, वो पार्टी को चांस देगा, पार्टीज को सुनेगा, और पार्टीज को सुनने के बाद इफ द कोर्ट कंसिडर दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, इफ द कोर्ट कंसिडर दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड अहेड, under such circumstances he shall discharge the accused and record its reason for doing so. If there is no ground to proceed ahead, the court will discharge the accused and he will mention the reason for doing so. तो क्या होगा कि फैक्टर सर्कमस्टांसेस कंसिडर करेगा कोर्ट, पार्टीज को सुनेगा, और ये सब करने के बाद अगर कोर्ट को ये लगता है कि केस में आगे चलने में कोई फायदा नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, अक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा और रीजन मेंशन करेगा डिस्चार्ज करने के. अब सेक्शन 227 पे प्रोबेबल क्वेश्चन है, इफ द अक्यूज्ड इज रिलीज्ड बाय द कोर्ट बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, द इफेक्ट विल बी डिस्चार्ज, एक्विटल, बोथ ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो. तो बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जब भी अक्यूज्ड को छोड़ा जाएगा, रिलीज किया जाएगा, तो दैट विल बी अ डिस्चार्ज, नॉट एक्विटल. तो डिस्चार्ज इज द करेक्ट आंसर. नाउ सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. So if after considering the record of the case and after hearing the parties, there is ground for presuming that the accused has committed an offense, and such offense is not exclusively triable by court of session, transfer the case to CJM and JMFC and direct the accused to appear there on such date as he deems fit. So after considering the facts and circumstances before the court and after hearing the parties, if the court feels that there is a reasonable ground to proceed ahead, and if that particular case is not triable by session court, then court will transfer that case to proper court, that is CJM or JMFC. And if the case is exclusively triable by the session court, the court shall frame in writing a charge against the accused. And if the case is triable by a session court will frame a charge in written form against the accused person. When the judge frame the charge shall be read and explained to the accused. So whenever the judge is framing the charge, it is the duty of that particular judge to read over and to explain the charge to the accused person. And the accused shall be asked whether he pleads guilty of the offense or claims to be tried. And after read over the charge to the accused person, court will ask a question, magistrate will ask a question to the accused whether he pleads guilty or claims to be tried, कि उसको गुनाह कबूल है या उसके अगेंस्ट में केस चलाने का है. तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में क्या है कि जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस चार्जशीट को पढ़ने के बाद, पार्टीज को सुनने के बाद, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो केस है सेशन ट्राइबल केस है, तो कोर्ट क्या करेगा, रिटर्न फॉर्म में अक्यूज्ड के अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम करेगा, और चार्ज फ्रेम करते वक्त अक्यूज्ड को वो चार्ज एक्सप्लेन कर कर सुनाएगा, पढ़कर सुनाएगा, और अक्यूज्ड को पूछेगा गुनाह कबूल है या केस चलाना है. समझ रहे हो? दैट इज अ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. सेक्शन 228 पे क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग शैल बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट व्हाइल फ्रेमिंग द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन. Charge shall be framed in writing. Charge shall be read over and explained to the accused. Accused shall be asked whether he pleads guilty or not. All of the above. So the correct answer is, हमने देखा कि यहाँ पर रिटन फॉर्म में चार्ज होना चाहिए, चार्ज को अक्यूज्ड को पढ़कर सुनाया जाएगा और उसको पूछा जाएगा whether he pleads guilty or not. तो all of the above is a correct answer. Now section 229. Next section is section 229. Conviction on plea of guilt. So, if the accused pleads guilty, the court shall record the plea and may in his discretion convict him thereon. So, section 228 में हमने देखा कि कोर्ट अक्यूज्ड को क्वेश्चन पूछेगा चार्ज फ्रेम करते वक्त कि गुनाह कबूल है या केस चलाना है. अगर अक्यूज्ड कहता है गुनाह कबूल है,
तो कोर्ट को डिस्क्रिशन है, कोर्ट वहीं पर केस रोक के कन्विक्शन का ऑर्डर पास कर सकता है सेक्शन 229 में। सेक्शन 230 इज देयर, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। So if the accused refuses to plead or does not plead guilty or claims to be tried or is not convicted under section 229, if the accused is not convicted under section 229 if he claimed to be tried under such a circumstances, the judge shall fix a date for the examination of witnesses। तो क्या होगा कि accused ये कहता है कि मुझे गुनाह कबूल नहीं है, मैं इनोसेंट हूं और मेरे अगेंस्ट में केस चलाया जाए, तो उस सिचुएशन में कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा और चार्ज फ्रेम करने के बाद प्रोसिक्यूशन के विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट क्या करेगा, डेट फिक्स करेगा। And may on the application of the prosecution issue any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or other things। And जब डेट फिक्स होगी तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, एक एप्लीकेशन करेगा कोर्ट को कि मेरे ये विटनेस है, इनको समन्स इशू किया जाए, या ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में बुलाया जाए, लाइक दैट। तो दैट विल बी द प्रोसेस in section 230। now section 231 is there, evidence for prosecution। so on the date so fixed, the judge shall proceed to take all such evidence of prosecution। so on the date fixed by the court, all the evidences of prosecution will be conducted and will be examined by the court, all the witnesses will be examined by the court। तो सेक्शन 230 में हमने देखा कि कोर्ट ने डेट फिक्स किया था, प्रोसिक्यूशन के विटनेस को समझ भी गए। अब जब वो डेट जो फिक्स किए हुए, वो डेट में जितने प्रोसिक्यूशन के विटनेस आएंगे उनका एग्जामिनेशन होगा। द जज में इन हिज डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस to be defer until any other witness or witnesses have been examined or recall any witnesses for further cross examination। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है। नॉर्मली कोर्ट में क्या होता है कि एक विटनेस आया, उसका एग्जामिनेशन चीफ भी होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी अपोजिट पार्टी तभी करती है। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट सारे विटनेस का पहले एग्जामिनेशन चीफ करा सकता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन भी करा सकता है सेक्शन 231 में। नाउ सेक्शन 232, एक्विटल। So if after taking the evidence for the prosecution, examining the accused and hearing the prosecution and the defense, the judge considered that there is no evidence that the accused committed the offense, the judge shall record an order of acquittal। So after taking all the evidences of prosecution, after examining the accused and after examining the prosecution and the defense, if the judge considers that there is no evidence that the accused has committed an offense, the judge shall record an order of acquittal। तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को सुनने के बाद, अक्यूज को एग्जामाइन करने के बाद, प्रोसिक्यूशन को एग्जामाइन करने के बाद, अगर कोर्ट को यह लगता है कि अक्यूज के अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस नहीं है, तो कोर्ट उसी टाइम पे ऑर्डर ऑफ एक्विटल बाइज्जत बरी कर देगा अक्यूज्ड को सेक्शन 232 में। डिफेंस की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब सेक्शन 233 है एंटरिंग अपॉन डिफेंस। So whether the accused is not acquitted under section, when the accused is not acquitted under section 232, he shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence he may have in support thereof। अगर सेक्शन 232 में अगर अक्यूज को एक्विटल नहीं मिलता है तो कोर्ट अक्यूज को अपॉर्चुनिटी देगा, अक्यूज को कहेगा कि तेरे पास कोई एविडेंस है तेरे सपोर्ट में। तो अक्यूज्ड अगर कहता है कि यस मेरे पास ये विटनेस है, इनको समन्स इशू किया जाए। सो इफ द अक्यूज्ड पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट द जज शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। अगर अक्यूज्ड रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है कोर्ट में तो वो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा एज अ रिकॉर्ड। देन इफ द अक्यूज्ड अप्लाइज फॉर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, द जज शैल इशू सच प्रोसेस बट नॉट ऑफ एक्सेशियस और डिले। तो यहाँ क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अक्यूज्ड ये कहता है कि मेरे ये विटनेस है और इनको समन्स भेजा जाए, मैं इनको एग्जामाइन करना चाहता हूं कोर्ट में, तो कोर्ट उन लोगों को, उन विटनेसेस को समन्स भेजेगा, उनको कोर्ट में बुलाएगा। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड सिर्फ मैटर को डिले करने के लिए इन विटनेस को कोर्ट में बुलाना चाहता है, तो कोर्ट समन्स को रिजेक्ट भी कर सकता है, अक्यूज्ड के एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। नाउ सेक्शन 234 इज आर्ग्यूमेंट।
After recording of the defense evidence, the prosecution shall sum up his case and the accused shall be entitled to reply. तो डिफेंस के एविडेंस होने के बाद प्रोसिक्यूशन अपनी फाइनल आर्ग्यूमेंट करेगा, अपनी केस को क्लोज करेगा और साथ ही साथ उसका रिप्लाई देगा अक्यूज्ड. Further, where any law point is raised by the defense, the prosecution may be allowed to make its submission with regard to such point of law. तो prosecution पहले argument करेगा, फिर defense argument करेगा और defense में अगर advocate कोई law point raise करता है तो वो law point का reply फिर से prosecution कर सकता है अपने argument में. That is section 234. Now section 235 is there, judgment of acquittal or conviction. So after hearing argument and point of law, if any, the judge shall give a judgment in the case. तो सब पार्टीज को सुनने के बाद, आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट पास करेगा. इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 360 हियर द अक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस एंड देन पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ. अगर कोर्ट अगर अक्यूज्ड को कन्विक्ट करना चाहता है और अगर कोर्ट उसको प्रोबेशन पे नहीं छोड़ रहा है, वो प्रोबेशन के लिए एलिजिबल नहीं है अक्यूज्ड, तो उसको अगर प्रोबेशन पे नहीं छोड़ रहा है तो अक्यूज्ड को चांस रहेगा, अक्यूज्ड को सुना जाएगा क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे. अक्यूज्ड को कहा जाएगा कि तू तेरे अगेंस्ट में गुनाह सिद्ध हो चुका है और तुझे क्या बोलना है सजा के बारे में. उसको सुनकर कोर्ट क्या करेगा, सेंटेंस का ऑर्डर पास करेगा, फाइनल जजमेंट. तो दैट इज सेक्शन 235, जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन. नाउ सेक्शन 236 इज देयर, प्रीवियस कन्विक्शन. So in case where a previous conviction is charged under the provision of subsection 7 of section 211 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge. तो कुछ कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं कि अगर वो पहली बार करता है तो एक पनिशमेंट होती है और दोबारा वही ऑफेंस करता है तो उसको इनहांस्ड पनिशमेंट होती है. समझ रहे हो? तो उस सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल चार्ज में प्रीवियस कन्विक्शन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सेक्शन 211 सब क्लॉज 7 में, अगर ये चार्ज फ्रेम करते वक्त उसको प्रीवियस कन्विक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है तो अक्यूज्ड अगर वो प्रीवियस कन्विक्शन को एडमिट नहीं करता है, अक्यूज्ड ये कहता है कि मुझे पहले कोई सजा नहीं हुई है, इस सिचुएशन में क्या होगा, द जज में आफ्टर ही हैज कन्विक्टेड द सेड अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 229 और सेक्शन 235 टेक एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अलेज्ड प्रीवियस कन्विक्शन एंड शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग देयरऑन. तो क्या करेगा कोर्ट कि अगर अक्यूज्ड मान नहीं रहा है पिछले कन्विक्शन को तो कोर्ट पहले सजा का ऑर्डर पास करेगा 229 और 235 में और उस प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड फिर कोर्ट सारे रिकॉर्ड और फाइंडिंग देखेगा, रिकॉर्ड पुराना वो एक्सेस करेगा. प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज shall be read out by the judge nor shall the accused be asked to plead thereto nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under section 229 or section 235. जब तक accused को section 229 और 235 में conviction नहीं होती तब तक previous conviction से related ना तो चार्ज उसको पढ़कर सुनाया जाएगा और ना तो कोई रिकॉर्ड उसको उसके यानी उसको रिकॉर्ड वगैरह बताया जाएगा. समझ रहे हो? सेक्शन 229 और 235 में अगर पनिशमेंट होती है, कोर्ट पनिशमेंट पास कर रहा है, तभी प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड सारी चीजें होगी, अदरवाइज नॉट. सो दैट इज सेक्शन 236. नाउ सेक्शन 237, प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सब क्लॉज 2. तो सेक्शन 199 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी का ये कहता है कि डिफेमेशन से रिलेटेड अगर प्रोसिक्यूशन लेवल होता है, मैजिस्ट्रेट के बाद प्राइवेट कंप्लेंट आती है तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है. तो अगर ऐसी केस इंस्टीट्यूटेड है सेक्शन 199 सब क्लॉज 2 में तो प्रोसीजर क्या रहेगा, A court of session taking cognizance of an offence under subsection 2 of section 199 shall try the case in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted otherwise than on a police report before a court of magistrate. जब कभी भी सेशन कोर्ट सेक्शन 199 सब क्लॉज 2 में कॉग्निजेंस लेगा तो वो कॉग्निजेंस कैसा लेगा, जैसा वारंट केसेस में कॉग्निजेंस लिया जाता है. और वारंट केसेस में भी अदर देन पुलिस रिपोर्ट, मतलब चार्जशीट पे नहीं, कंप्लेंट पे जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है वारंट केसेस में, ठीक उसी तरीके से सेशन कोर्ट भी कॉग्निजेंस लेगा सेक्शन 199 सब क्लॉज
2 में, provided that the person against whom the offense is alleged to have been committed shall, unless the court of session for reason to be recorded otherwise, direct be examined as a witness for the prosecution. तो provided that the person against whom the offense is alleged to have been committed, कि जिस पर्सन के अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है ऐसा बताया जा रहा है, unless the court of session for reason to be recorded otherwise, direct बी एग्जामाइंड एज ए विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो वो पर्सन जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है डिफेमेशन का, उसको एज ए विटनेस एग्जामाइन किया जा सकता है। Every trial under this section shall be held in camera if either party thereto so desire or if the court thinks fit so to do। तो जो भी ट्रायल है इस सेक्शन में वो इन कैमरा होगी अगर दोनों पार्टी में से कोई पार्टी ये चाहती है कि इन कैमरा हो या कोर्ट को लगता है इन कैमरा हो तो वो प्रोसीडिंग इन कैमरा रहेगी। नाउ सेक्शन 237 सब क्लॉज 3, if in any such case the court discharge or acquit all or any one of the accused and is of opinion that there was no reasonable cause for making the accusation against them or any one of them, it may by its order of discharge or acquittal direct the person against whom the offense was alleged to have been committed other than the president, vice president or the governor of the state or administrator of union territory to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ऑफ सेशन अगर अक्यूज्ड को डिस्चार्ज या एक्विट करता है और ये ओपिनियन है एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर वाज नो रीजनेबल कॉज फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन अगेंस्ट देम और एनी वन ऑफ देम, और कोर्ट ये कंसिडर करता है कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट में कंप्लेंट करने का कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं था और इस बेस पे अगर अक्यूज्ड को कोर्ट अगर डिस्चार्ज या एक्विटल देता है तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्ट द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस वाज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड। जिस पर्सन के अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ ऐसा कहा गया था उसको डायरेक्ट करेगा क्या, टू शो कॉज, उसको रीजन बताने की नोटिस, शो कॉज नोटिस देगा उसको, व्हाई ही शुड नॉट पे कंपेंसेशन टू सच अक्यूज्ड और टू ईच और एनी वन ऑफ सच अक्यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन वन। तो अगर कोर्ट डिस्चार्ज करता है या एक्विट करता है और कोर्ट को यह लगता है कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं था अक्यूज्ड के अगेंस्ट में आगे बढ़ने का, तो जिस पर्सन ने भी अक्यूज्ड के अगेंस्ट में कंप्लेन किया था उस पर्सन को एक नोटिस देगा कोर्ट कि क्यों ना हम तुम्हें कंपेंसेशन पे करने का ऑर्डर दे, ऐसे एक शो कॉज नोटिस उस पर्सन को दे सकता है। The court shall record and consider any cause which may be shown by the person so directed, and if it is satisfied that there was no reasonable cause for making the accusation, it may for reason to be recorded make an order that compensation to such amount not exceeding 1000 rupees as it may determine be paid by such person to the accused or to each one of them। और जो पर्सन जिसने कंप्लेंट किया था उसको शो कॉज की नोटिस देगा कोर्ट, और अगर वो प्रॉपर रीजन नहीं बताता है अपने शो कॉज नोटिस का जवाब में, अगर वो प्रॉपर रीजन नहीं बताता है, रीजनेबल कॉज शो नहीं करता है अक्यूजेशन के, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है, कंपेंसेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। वो बोल सकता है कि अक्यूज्ड को कंपेंसेशन पे करो, आप कितना, नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, तो 1000 रुपये तक का कंपेंसेशन पे करने का ऑर्डर वो पर्सन को दे सकता है जिसने क्रिमिनल कंप्लेंट किया था अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। सबसेक्शन 5 is there, compensation awarded under subsection 4 shall be recovered as if it were a fine imposed by a magistrate। तो जो भी कंपेंसेशन कोर्ट इंपोज करेगा पर्सन पे वो एज अ फाइन रिकवर होगा, और हमको पता है एज अ फाइन जब रिकवर होगा अगर फाइन पे नहीं किया गया तो फाइन के बदले इम्प्रिजनमेंट सजा भी होती है, तो एज अ फाइन कंपेंसेशन रिकवर किया जाएगा। Subsection 6, no person who has been directed to pay compensation under subsection 4 shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made under this section। तो अगर कोई पर्सन को कंपेंसेशन का ऑर्डर भी पास करते हैं सेक्शन सब क्लॉज 4 में, तो वो कंपेंसेशन के ऑर्डर के चलते वो पर्सन एग्जम्प्ट नहीं हो जाएगा कोई सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से, वो कंप्लेंट से जो क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी अराइज होने वाली है उससे वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। मतलब कंपेंसेशन का ऑर्डर
किसी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी को किसी भी तरीके से कोई अफेक्ट नहीं करेगा। प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट पेड टू एन अक्यूज्ड पर्सन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन अवॉर्डिंग कंपेंसेशन टू सच पर्सन इन एनी सब्सिक्वेंट सिविल सूट रिलेटिंग टू द सेम मैटर। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर इस सेक्शन में कोर्ट कंपेंसेशन का ऑर्डर पास करता है और अक्यूज्ड को कंपेंसेशन मिलता है तो वो कंपेंसेशन दूसरी कोई सिविल केस में, अगर इसी मैटर से रिलेटेड अगर सिविल केस चलती है दूसरी, तो उस सिचुएशन में वहां पर कंपेंसेशन ग्रांट करते वक्त ये कंपेंसेशन जो अभी अक्यूज्ड को मिला है वो कंसिडर होगा। The person who has been ordered under subsection 4 to pay compensation may appeal from the order insofar as it relates to the payment of compensation to the High Court। जब कभी भी सेशन कोर्ट कंपेंसेशन का ऑर्डर पास करेगा तो वो पर्सन जिसको कंपेंसेशन देने का कहा गया है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। नाउ subsection 8, when an order for payment of compensation to an accused person is made, the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, or if an appeal is presented before the appeal has been ordered। तो जो भी कंपेंसेशन का ऑर्डर पास किया हुआ है, अक्यूज्ड को जो कंपेंसेशन देने का ऑर्डर पास किया हुआ है, वो कंपेंसेशन का ऑर्डर एग्जीक्यूट कब तक नहीं होगा? जब तक के जो पीरियड ऑफ अपील है, अपील करने का जो पीरियड है, अपील प्रेजेंट करने का जो पीरियड है, वो पीरियड जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक वो कंपेंसेशन देने के लिए लायबल नहीं है। और अगर वो अपील कर देता है तो जब तक वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक उस अक्यूज्ड को कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो these are the particular provision relating to trial before court of session. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.